السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم فارغ ہو چکی ہے اور اب اپنی موت آپ مر رہی ہے۔ حکومت کو پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کو اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کی ہدایت کر دی۔ دعویٰ کیا کہ حکومت کو پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی سال 2020 کی کارکردگی کا اعلامیہ جاری۔ حکومت نے گزشتہ سال معاشی میدان میں بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ وزیر اعظم کی کرونا پالیسی کی عالمی سطح پر پذیرائی، کئی منصوبے مکمل کیے اور کئی نئے منصوبے کی بنیاد رکھی۔ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا بھی وزیر اعظم کی کارکردگی میں شامل۔ نیب کسی کے کنٹرول میں نہیں، لگام ڈالنا پڑے گی۔ ملک چلانا ہے تو پرائیویٹ ٹرانزیکشن کو نیب سے نکالنا ہوگا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا سینٹ اجلاس میں برس پڑے، کہا ایوارڈ ڈرے گا تو پھر سمجھ لیں پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ عدالت مجھے جو سزا دے گی وہ منظور ہوگی، اگر سزا غلط ہوئی تو وہی سزا آپ کو دی جائے گی۔ سینٹ اجلاس میں معاملے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ 2 سال میں نیب نے 389 بلین کی ریکوری کی۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے تو عدالت سے رجوع کریں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے نیب قانون میں جو ترامیم تجویز کی اسے ہم نہیں مان سکتے۔ سینٹ اجلاس میں سینیٹر فیصل جاوید کی اپوزیشن پر کڑی تنقید، کہا وزیر اعظم عمران خان نے 40 سالہ ریکارڈ عدالت میں پیش کیا، اپنی ایک ایک پائی کا حساب دیا، اپوزیشن کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ حکومتی سینیٹر نے کہا اپوزیشن بند گلی میں پھنس چکی ہے، وہ کچھ بھی کر لیں، عمران خان ان کو NRO نہیں دیں گے، ان کے استعفے لطیفے بن گئے ہیں، وہ ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ نیب نے 2019-20 کے دوران 389 ارب روپے ریکور کیے۔ 2018 سے قبل 10 سال میں نیب نے 104 ارب روپے ریکور کیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہا یہ حقائق بتاتے ہیں سیاسی مداخلت کے بغیر آزادانہ ادارے کیسے کام کرتے ہیں۔ بدعنوان حکمرانوں کے تحت گزشتہ 10 سال سیاہ دور تھا۔ یہ حقائق بتاتے ہیں کہ سیاسی مداخلت کے بغیر آزادانہ ادارے کیسے کام کرتے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ مظاہرہ فارن فنڈنگ کیس التوا کا شکار ہونے کے خلاف کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی تمام اپوزیشن جماعتوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ پی ٹی ایم کے رہنما عبدالغفور حیدری کہتے ہیں احتجاج کامیاب بنانے کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھاولپور میں پی ٹی ایم کا شو تھا مگر اس شو میں پاور نہیں تھی۔ جنوبی پنجاب کس دور حکومت میں محروم ہوا اور محروم کس نے کیا؟ بولے کہ اپوزیشن اداروں پر تنقید کر کے بھارتی بیانیے کی ترویج کر رہی ہے۔ جو آواز بھارت کے بیانیے سے مطابقت رکھتی ہو کیا قومی خدمت کرے گی؟ لاہور کی احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کے وکیل کے پیش نہ ہونے پر نیب کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ نہ ہو سکے۔ شہباز شریف نے کمرہ عدالت میں دعویٰ کیا کہ چنیوٹ مائنز میں 4 ارب روپے کی ریکوری انہوں نے کی۔ نیب نے محض 13 سال بعد پنجاب کے وزیر کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ حکومت شہباز شریف پر 1 پیسے کی کرپشن ثابت نہ کر سکی۔ نیب نے لندن میں پاکستان کے 4 ارب ڈبوئے۔ نیب پر مقدمہ کون بنائے گا؟ جس دن عمران خان پر فارن فنڈنگ کیس کھل گیا حکومت گھر چلی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال برس پڑے۔ مریم اورنگزیب نے کہا شہباز شریف کو پابند سلاسل ہوئے 100 دن ہو گئے، 100 پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ بلوچستان کے علاقے مچھ میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 11 افراد کی ہلاکت کے خلاف ہزارہ برادری کا میتوں کے ہمراہ دوسرے روز احتجاجی دھرنا جاری۔ مظاہرین نے وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خود آ کر تحفظ کی یقین دہانی کرائیں، بصورت دیگر دھرنا جاری رہے گا۔ دھرنے کے باعث مغربی بائی پاس پر ٹریفک کی روانی معطل ہے۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی فورس کے ہاتھوں نوجوان اسامہ ستی کا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی JIT کا پہلا اجلاس۔ معاون خصوصی زلفی بخاری کی مقتول اسامہ کے گھر آمد، کہا جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے، ملزمان کا احتساب ہوگا۔ ہیکرز کی حساس معلومات تک رسائی کی ایک اور کوشش، حکومت کی جانب سے ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ ہیکرز پاکستان ایئر شو کراچی 2021 کے دعوت نامے کی آڑ میں ای میلز ارسال کر رہے ہیں۔ ای میل سے منسلک فائل ڈاؤن لوڈ کرنے سے سارا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے۔ ہیکرز معلومات تک رسائی کے لیے پاسپورٹس اور IDs چرا سکتے ہیں۔ حکومت نے صارفین سے اپنے کمپیوٹرز میں معروف کمپنی کی اینٹی وائرس انسٹال کرنے اور استعمال نہ ہونے والی تمام اپلیکیشنز کو ڈیلیٹ کرنے کی سفارش کر دی۔ حکومت نے 18 جنوری سے 9ویں تا 12ویں جماعت تک تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 25 جنوری سے پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک اسکول کھولے جائیں گے، جبکہ بورڈ کے امتحانات مؤخر کر کے مئی اور جون میں کرائے جائیں گے۔
1 फरवरी से तमाम जामियात भी खोलने का ऐलान कर दिया गया। बरतानिया से वापस आने वाले 2 पाकिस्तानियों में कोरोना की नई किस्म की तस्दीक हो गई। कौमी वजारत सेहत ने वबा ज्यादा तेजी से फैलने का इशारा दे दिया। कोरोना वायरस से 24 घंटों में मजीद 39 अफराद जाँ बहक हुए। 1895 नए मरीज भी सामने आए। गैस के बहरान के बायस सिंध भर में तमाम CNG स्टेशन को 3 दिन के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सूबे के तमाम CNG स्टेशन जुमेरात की सुबह 8 बजे खुलेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, वफाकी हुकूमत सिंध को गैस फराहम ना करके आइन का मजाक उड़ा रही है। गैस न होने से सिंध की सनतें तबाही के दहाने पर पहुँच गई हैं। 15 एशियाई ममालिक बशमूल आसियान के 10 अरकान और दुनिया की 1/3 आबादी ने अहम तरीन इलाकाई तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत मुआहदे में शामिल ममालिक की मईशत एक दूसरे में जम हो जाएंगी। काबुल में कमसिन बच्ची से जिनसी ज्यादती के घिनाव ने फेल में भारतीय गिरोह मुलव्विस निकला। भारतीय सयाह दीप देसाई ने 28 दिसंबर 2020 को 15 साल अगवान लड़की से जिनसी ज्यादती की और इस मकरूफ फेल की वीडियो भी बनाई। न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च टेस्ट के दूसरे रोज 3 विकेटों पर 286 रन स्कोर किए। कीवीज को पाकिस्तान की बरतरी खत्म करने के लिए मजीद 11 रन दरकार हैं। मेजबान टीम के कप्तान केन विलियमसन ने सेंचुरी स्कोर की। मारूफ शेफ, मेजबान और माहिर उमूर खानादारी जुबैदा तारिक को हमसे बिछड़े 2 बरस बीत गए, लेकिन इनसे जिंदगी गुजारने का तरीका सीखने वाले आज भी इन्हें याद करते हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने तालीमी इदारों को मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया। ताहम तालीमी इदारे खोलने से कबल 14 और 15 जनवरी को दोबारा इजलास होगा, जिसमें मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। इस्लामाबाद में NCOC के इजलास से मुश्तरका खिताब में वफाकी वज़ीर तालीम और मुआविन खसूसी बराए सेहत शफकत महमूद ने तालीमी इदारों को मरहलावार खोलने का ऐलान करते हुए कहा कि 18 जनवरी से 9, 10, 11 और 12वीं जमातों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा, जबकि इसके बाद 25 जनवरी से प्राइमरी से लेकर 8वीं जमात तक स्कूल खोले जाएंगे। 1 फरवरी से हायर एजुकेशन के तहत चलने वाले तालीमी इदारे यानी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह में तालीमी सिलसिला शुरू किया जाएगा। शफकत महमूद का मजीद कहना था कि बोर्ड के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं, जो अब मई और जून में होंगे। ताहम तालीमी इदारे खोलने से कबल 14 और 15 फरवरी को दोबारा इजलास बुलाएंगे, जिसमें मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। ख्याल रहे कि वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत होने वाले इजलास में दीगर नुमाइंदों ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक मुशावरत की गई। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा और दूसरी लहर में शिद्दत आने पर गुज़िश्ता साल 26 नवंबर 2020 को स्कूल समेत दीगर तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते वज़ारत तालीम और निजी तालीमी इदारों के इजलास में 4 जनवरी के इजलास हतमी ऐलान का बयान सामने आया। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों की फायरिंग से 11 अफराद की हलाकत के खिलाफ हज़ारा बरादरी का मैयतों के हमरा दूसरे रोज एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि वो खुद आकर तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराएं। बसूरत दीगर धरना जारी रहेगा। धरने के बायस मगरबी बाईपास पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। मच कोयला फील्ड में जाबाग होने वाले शहदा के लवाहिकीन लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज कर रहे हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन MWM के कारकुनों समेत हज़ारा बरादरी के नौजवानों समेत खवातीन की बड़ी तादाद धरने में मौजूद है। एहतजाजी धरने के बायस मगरबी बाईपास शाहराह पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन सानिया मच में जाबाग 11 अफराद के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर रहे हैं। रहनुमा MWM सैयद आगा रजा का कहना था कि हमारे साथ 22 सालों से यही नारवा सलूक जारी है। किसी ने भी हमारे साथ इस दुख की घड़ी में इजहार यकजहती नहीं किया। जब तक वजीर आजम पाकिस्तान धरने के शुरका को आकर तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी नहीं करा देते, हम लाशों की तदफीन नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास कल होगा। वफाकी काबीना का 9 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। काबीना इजलास में अहम मुल्की उमूर पर गौर और फैसले होंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस और इनके तदराक पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास में 7 वजारतें और डिवीजन्स की समरियों पर फैसले और ब्रीफिंग्स होंगी। पाकिस्तान एक्सपो सेंटर्स के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत की समात पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की तकर्रुरी काबीना एजेंडा में शामिल है। 1997 में इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक काबीना के फैसले पर नजरसानी का मामला एजेंडा में शामिल है। फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक इंस्पेक्शन कमेटी की तश्कील, मुतबादिल एनर्जी डेवलपमेंट
डेवलपमेंट बोर्ड के CEO राना अब्दुल जब्बार के इस्तीफे का मामला काबीना एजेंडा में शामिल है। इजलास में नौशहरा में रेलवे और वजारत दिफा के दरमियान कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर का तनाज़े का फैसला मुतवक्के है। काबीना इदारा जाती इस्लाहात से मुतालिक कमेटी के 17 दिसंबर के फैसलों की तौसीक करेगी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी केसेस के 31 दिसंबर के फैसलों की भी तौसीक करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि PDM फारिग हो चुकी है और अब अपनी मौत आप मर रही है। हुकूमत को PDM से कोई खतरा नहीं है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमती तर्जुमान का इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन पर तनकीद की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास में पार्टी तर्जुमानों को अपोजिशन के टफ टाइम देने की हिदायत की और कहा कि PDM फारिग हो चुकी, अपनी मौत आप मर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को PDM से कोई खतरा नहीं। इन लोगों ने कोरोना वायरस के दिनों में अवाम की जिंदगी से खेलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की पूरी तहरीक NRO के लिए है, जो मैं उन्हें नहीं दूंगा। इमरान खान ने कहा कि कमजोर मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लेके जा रहे हैं, तमाम माशी इशारे दुरुस्त सिमत में हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को माशी कामयाबियाँ उजागर करने की हिदायत की है और कहा है कि नए साल में कारकर्दगी मजीद बेहतर करने के लिए डिलीवरी पर तवज्जो हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा मुंतखब हुकूमत का साथ दिया है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को रियासत के मफादात को महफूज रखना होता है। भारतीय मुजालिम को मौसर अंदाज में उजागर किया है, मसला कश्मीर को मुसलसल उठा रहे हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है। हक़ खुद इरादियत की तहरीक कामयाब होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज भावलपुर में PDM के शो में पावर कहीं नहीं थी, शुरा की अक्सरियत तलबा की थी। जनूबी पंजाब में कभी फंड्स की मुनसिफाना तकसीम नहीं हुई, वहाँ के अवाम के हुकूक उनके अदवार में सलब हुए। जनूबी पंजाब को महरूम किसने रखा, पंजाब में हुकूमत किसकी थी? मौजूदा हुकूमत ने इख्तियारात जनूबी पंजाब में मुंतकिल किए हैं। अब जनूबी पंजाब के फंड्स किसी और जगह मुंतकिल नहीं हो सकेंगे। इदारों की हिमायत के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा मुंतकिब हुकूमत का साथ दिया है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को रियासत के मफादात को महफूज रखना होता है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि बलूचिस्तान का वाक़या दर्दनाक और अफसोसनाक है। बेगुनाह और मासूम लोगों को शहीद किया गया, इसकी मजम्मत करता हूँ। भारत हमारी सरहदों पर चढ़ाई किए हुए है, वो दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। भारत चाहता है CPEC में रुकावट डाले। भारत ऐसे वाक़यात कराता है ताकि लोगों में मायूसी फैले। डिसइंफो लैब ने भारत की असली चेहरे को बेनकाब किया है। अपोजिशन बलूचिस्तान पर साथ दे, ना के जलसे करती फिरे। भारतीय बयानिए की हाँ में लाएंगे तो इससे दुश्मन को तक़वियत मिलेगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमने भारतीय मुजालिम को मौसर अंदाज में उजागर किया है, मसला कश्मीर को मुसलसल उठा रहे हैं और ये हमारा फर्ज है। हक खुद इरादियत की तहरीक कामयाब होगी। आसिया अंद्राबी समेत बहुत से रहनुमाओं को झूठे केसेस में पकड़ा गया है। मकबूजा कश्मीर के कैद रहनुमाओं को रिहाई मिलनी चाहिए। आसिया अंद्राबी की जिंदगी खतरे में है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर की खवातीन में जोश और वलवला पैदा किया। दुनिया देख रही है, भारत ने हिंदू तवा नजरिए को अपना लिया है। भारत में अक़लियतें खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं। भारत में किसान सरापा एहतजाज है। आलमी मीडिया पहले से भारतीय पॉलिसियों पर तनकीद कर रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि हुकूमत गिराने के लिए भावलपुर के अवाम ने फैसला सुना दिया। यहाँ अवाम का ठाटे मारता समंदर है, अगर फजलुर रहमान हुक्म दें तो उस समंदर का रुख इस्लामाबाद की जानिब कर दूं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने PDM की भावलपुर में निकाली गई रैली से खिताब करते हुए कहा, इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान, यूसुफ रजा गिलानी, मोहम्मद जुबैर उमर और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। मरियम नवाज ने कहा कि जाली, नाजायज और नाअहल वजीर आजम को घर भेजा जाए। मुल्क में बहुत महंगाई हो गई है, जहाँ जाती हूँ लोग कहते हैं महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिया है। आज भावलपुर के अवाम ने फैसला सुना दिया है। यहाँ अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर है। अगर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कह दें तो अवामी समंदर का रुख इस्लामाबाद की जानिब कर दूंगी। जिस दिन PDM ने इस्तीफे दे दिए, इस दिन हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे सूबे कहते हैं जब तक पंजाब खड़ा नहीं होगा मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी। पंजाब अपने हुकूक को वापस लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। पंजाब की अवाम बताएं क्या वो अपना हक छीनने के लिए तैयार है, क्योंकि पंजाब के उठने पर मुखालफिन की टांगे कांपने लगती हैं। आपके हक पर वोट की शक्ल में जो डाका डाला था, क्या वो वापस लेने के लिए तैयार है? इस जाली हुकूमत को गिराने के लिए तैयार है? मरियम नवाज ने कहा, क्या महंगाई, बेरोजगारी, माफिया को आजादी, LNG स्कैंडल को तब्दीली कहते हैं? क्या कश्मीर फरोशी को तब्दीली कहते हैं? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत गिराने के लिए भावलपुर की अवाम ने फैसला सुना दिया है। यहाँ अवाम के ठाटे मारता समंदर है। अगर फजलुर रहमान हुक्म देंगे तो इस समंदर का रुख इस्लामाबाद की जानिब कर दूंगी। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ के वकील के पेश ना होने पर नैब के गवाहों के बयानात रिकॉर्ड ना हो सके। शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में दावा किया है कि चिन्योट माइंस में 4 अरब रुपए की रिकवरी उन्होंने की। नैब ने महज 13 साल बाद पंजाब के वजीर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन के रूबरू पेश किया गया। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने वकील की बीमारी के बाइस केस मुलतवी करने की इस्तदा की, जिस पर जज ने जवाब दिया कि वो खुद तबीयत खराबी के बावजूद अदालत आए हैं। शहबाज शरीफ ने बताया कि उन्होंने 2008 में चिन्यूट में साबिक दौरे हुकूमत में होने वाली अरबों की करप्शन पर नैब की तवज्जो दिलाई, मगर सुनवाई न हुई। 13 साल बाद नैब को ख्याल आया और इसी केस में मौजूदा सूबाई वजीर के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया। शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने कौम का खजाना बचाते हुए 4 अरब रुपए की रिकवरी की। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर कार्रवाई 6 जनवरी तक मुलतवी करते हुए नैब के गवाहों को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर दिया। गैस के बहरान के बायस सिंध भर में तमाम CNG स्टेशन को 3 दिन के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सूबे के तमाम CNG स्टेशन जुमेरात की सुबह 8 बजे खुलेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। SSTC की जानिब से नोटिफिकेशन के इजरा के बाद सिंध भर के तमाम CNG स्टेशन को पीर से सुबह 8 बजे से ही गैस की फराहमी बंद कर दी गई। ये बंदिश 7 जनवरी तक बरकरार रहेगी। 72 घंटों तक CNG ना मिलने पर रिक्शा और टैक्सी चलाने वाले अफराद और दीगर शहरियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वाज़ेह किया कि इस सूरत हाल से वो शदीद मुतासर होंगे। गैस की अदम फराहमी के बायस तमाम CNG स्टेशन बंद कर दिए गए, जबकि RLNG पर मुंतकिल होने वाले स्टेशन भी बंद रहेंगे। अवामी हलकों ने खदशा जाहिर किया है कि CNG पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब पेट्रोल पर चलेगी और इसके इजाफी अखराजात का बोझ भी अवाम पर डाल दिया जाएगा। सिंध में गैस बहरान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत विफाक पर बरस पड़े। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं विफाकी हुकूमत सिंध को गैस फराहम ना करके आइन का मजाक उड़ा रही है। सिंध में गैस की फराहमी ना होने से सनतें तबाही के दहाने पर पहुँच गई हैं। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई रोज़ कई हफ्ते गुजर जाने के बाद ये मौजूदा वफाकी हुकूमत हमारी सनतों को गैस प्रोवाइड करने में नाकाम रही है। ये इस बात के बावजूद कि वफाकी हुकूमत ने ख़ुद कमिट किया था कि अगर सनती सार्फिन महंगी RLNG लेने को तैयार हैं तो उनको अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई मिलेगी, लेकिन इस कमिटमेंट के बावजूद वफाकी हुकूमत हमारे सनतों को गैस प्रोवाइड करने में नाकाम हुई है। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 158 के मुताबिक सूबाई सिंध को उसके हिस्से की गैस मिलनी चाहिए, और जब तक वफाकी हुकूमत ये गैस हमें प्रोवाइड नहीं करेगी, हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत आइन शिकनी कर रही है और आइन को फॉलो नहीं कर रही। वक्त आ गया है कि खान साहब सिर्फ नोटिस ना लें, बल्कि अपने किए हुए वादों को, जो वफाकी हुकूमत की आइनी जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करने का अपना किरदार अदा करें। अब वक्त आ गया है कि जो ATMs बैठी हुई हैं आपकी काबीना में, जो कि आपसे गलत फैसले करवाती हैं, उन ATMs को घर भेजें, ताकि जो बार बार हमारे इन्वेस्टर का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, मजदूर का, एक आम आदमी का जो इस्तेहसाल ये ATMs कर रही हैं, वो इस्तेहसाल का सिलसिला वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म होना चाहिए। मुल्क भर में मजीद 1895 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है, जबकि 39 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की तादाद में मुसलसल दूसरे रोज कमी रिकॉर्ड। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 30,139 टेस्ट किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान मजमूई तौर पर 30,139 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह इस वबा की तशखीस के लिए होने वाले टेस्ट की तादाद 68,49,867 हो गई है। पाकिस्तान में मजीद 1,895 अफराद मुतासिर हो गए हैं, जिसके बाद मुतासिर अफराद की कुल तादाद 4,88,529 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.92% हो गई है। NCOC के मुताबिक सिंध में अब तक 2,18,597 अफराद कोरोना के मुसद्दिका केसेस सामने आ चुके हैं। पंजाब में 1,40,714, खैबर पख्तूनख्वा में 59,484, इस्लामाबाद में 38,263, बलूचिस्तान में 18,247, आजाद कश्मीर में 8,357 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद 4,867 हो गई है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1,797 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दे दी है, जिसके बाद इस वबा से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,42,457 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 39 मुसद्दिका मरीज जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद इस वबा से लुक़मा अजल बनने वाले अफराद की तादाद 10,350 हो गई। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन इस वबा से सबसे ज्यादा जानी नुकसान पंजाब में हुआ है, जहाँ 4,124 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 3,611, खैबर पख्तूनख्वा में 1,675,
اسلام آباد میں 428، گلگت بلتستان میں 101، بلوچستان میں 185 اور آزاد کشمیر میں 226 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ NCOC کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 35,722 ہے، جن میں سے 2,242 کی حالت تشویشناک ہے۔ FATF کے بڑے مطالبے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان پوسٹ نے ملک بھر کے ڈاک خانوں میں عام سیونگ اکاؤنٹس اور اسپیشل سیونگ اکاؤنٹس بند کرنے کے لیے آج سے کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ 15 جنوری کو یہ دونوں سیونگ اکاؤنٹس مکمل بند کر دیے جائیں گے۔ وزارت مواصلات نے پہلے مرحلہ میں ایسے اکاؤنٹ جن میں رقم 100 روپے سے 500 روپے تک ہے اور جن میں گزشتہ ایک سال سے کوئی لین دین نہیں ہوا، انہیں 15 جنوری سے ختم کر دیا جائے گا۔ ملک بھر میں اس فیصلے سے 50,000 سیونگ اکاؤنٹس بند ہوں گے۔ ایسے تمام سیونگ اکاؤنٹس ہولڈرز کو GPOs کی طرف سے پیغامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈاک خانوں کا پینشن سسٹم بھی مرحلہ وار بینکس میں شفٹ کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ FATF کے بڑے مطالبے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان پوسٹ نے ملک بھر کے ڈاک خانوں میں عام سیونگ اکاؤنٹس اور اسپیشل سیونگ اکاؤنٹس بند کرنے کے لیے 4 جنوری سے کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ 15 جنوری کو یہ دونوں سیونگ اکاؤنٹس مکمل بند کر دیے جائیں گے۔ FATF کے بڑے مطالبے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان پوسٹ آفس نے ملک بھر کے ڈاک خانوں میں عام سیونگ اکاؤنٹس اور اسپیشل سیونگ اکاؤنٹس بند کرنے کے لیے 4 جنوری سے کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں کاروباری خبروں پر BTV بزنس میں۔ اور اب اسٹاک مارکیٹ اپڈیٹ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اکاؤنٹنٹس، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور پراپرٹی ڈیلرز اور جیولرز کے لیے جائیداد اور سونے کے زیورات اور ہیرے جواہرات خریدنے والوں کے قوائف جمع کروانے اور رجسٹریشن کے لیے قائم کردہ ڈائریکٹریٹ جنرل آف DNFBPs کو مکمل طور پر آپریشنل بنانے کے لیے فنڈز مانگ لیے ہیں۔ FBR کے سینئر افسر نے بتایا کہ حکومت نے ڈائریکٹر جنرل آف DNFBPs کو رواں ماہ کے آخر تک مکمل طور پر آپریشنل بنانے کا ہدف دیا ہے، جس کے لیے FBR نے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو ڈاکٹر بشیر اللہ مروت کو ڈائریکٹر جنرل DNFBPs کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا ہے، اور ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کے مجاز افسران نے اضافی چارج کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل FDNFBPs کے طور پر کام شروع کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آف DNFBPs کے لیے درکار فنڈز اور افرادی قوت کے لیے سمری تیار کر کے وزارت خزانہ کو بھجوا دی۔ مذکور افسران نے بتایا کہ FBR نے ڈائریکٹر جنرل DNFBPs، ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز سمیت دیگر معاون اسٹاف کے اختیارات و وجوہ ریزیڈکشنز کے تعین کے رولز بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ ان ریگولیشنز کے تحت سیاست دانوں اور ان کی بیوی بچوں، وزیر کفالت، فیملی ممبران کے خلاف بھی گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ لاکھ روپے یا اس سے زائد مالیت کی ٹرانزیکشن پر ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور 20 لاکھ روپے یا اس سے زائد مالیت کی ٹرانزیکشنز پر رعایت اسٹیٹ سیکٹرز اور جیولرز کو خریداری کرنے والے صارفین سے فارم پر کروانا ہوگا، اور اس میں خریداری کے لیے آنے والے شخص کے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ نمبر، متعلقہ شخص کا نام، پتہ، رابطہ نمبر اور رقم کی ادائیگی کا ذریعہ بھی بتانا ہوگا۔ جیولرز یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو کسی قسم کی مشکوک ٹرانزیکشن معلوم ہوگی تو اس کے بارے میں بھی مجاز اتھارٹیز کو آگاہ کرنا ہوگا۔ اور اب کرنسی اپڈیٹ۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ 15 ایشیائی ممالک بشمول آسیان کے 10 اراکین اور دنیا کی 1/3 آبادی نے اہم ترین علاقائی تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے تحت معاہدے میں شامل ممالک کی معیشتیں ایک دوسرے میں ضم ہوں گی۔
इस मुआहदे को RCEP कहा गया है, जो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा मुआहदे से भी बड़ा है। इस मुआहदे में शामिल ममालिक की आबादी दुनिया की आबादी का 1/3 है और उनकी मईशत आलमी मईशत का 30% है। इस मुआहदे के नतीजे में कई तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक ने अपनी मईशतें ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक से जम कर दी। RCEP के रुकन ममालिक की कौमी आमदनी सालाना $146 बिलियन तक बढ़ सकती है। देखना यह है कि पाकिस्तान इस मुआहदे में शामिल एशियाई ममालिक का मुकाबला कर पाएगा। चीन की RCEP में शमूलियत के बाद पाकिस्तान के तरजीही टैरिफ रेट्स नजरअंदाज किए जाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि चीन लामहला RCEP अरकान को ज्यादा रियायतें देने का पाबंद होगा। RCEP के ममालिक की मईशतें जिस कदर एक दूसरे में जम होंगी, ये उतने ही ज्यादा सनती बन जाएंगे। घटते हुए तजारती हजम के पेश नजर पाकिस्तान को ये समझना होगा कि तहफ़्फ़ुज़ और तन्हाई पर मबनी पॉलिसियों की वजह से ये बहुत पीछे रह गया है। काबुल में कमसिन बच्ची से जिनसी ज्यादती के घिनौने फेल में भारतीय गिरोह मुलव्विस निकला। भारतीय सयाह दीप देसाई ने 28 दिसंबर 2020 को 15 साल अगवान लड़की से जिनसी ज्यादती की और इस मकरू फेल की वीडियो भी बनाई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में भारतीयों की गैर इखलाकी सरगर्मियां उरूज पर हैं और बच्चों से जिनसी ज्यादती और वीडियो बनाने का एक और वाकया मंजर आम पर आ गया है। अफगान पुलिस की सुपरिटेंडेंट राशिद खान के मुताबिक दारुल हुकूमत काबुल में कमसिन बच्ची से जिनसी ज्यादती के घिनौने फेल में भारतीय गिरोह मुलव्विस निकला। भारतीय सयाह दीप देसाई ने 28 दिसंबर 2020 को 15 साल अफगान लड़की से जिनसी ज्यादती की और इस मकरू फेल की वीडियो भी बनाई। भारतीय सयाह दीप देसाई ने अफगान लड़की को जान से मार देने की धमकी दी, जिस पर लड़की ने खौफजदा होकर वाक़े से मुतालिक खानदान को ना बताया। ताहम भारतीय सयाह ने वीडियो समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शेयर कर दी, जो वायरल हो गई। अफगान पुलिस के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 4 थानों की टीमें तश्कील दे दी गई और कार्रवाई करके भारतीय सयाह दीप देसाई को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वीडियो की ऑनलाइन तशहीर को रोकने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। अफगान मीडिया का कहना है कि ये पहली बार नहीं कि अफगानिस्तान में अफगान बच्ची के साथ ज्यादती में भारतीय मुलव्विस पाया गया हो। इससे कबल भी भारतीय दिफाई अताशी ब्रिगेडियर्स SK नारेन ने भी अफगान लड़की से जिनसी ज्यादती की थी। अफगान लड़की ने तालीमी वजीफे के हुसूल के लिए सिफारत खाने में दरखास्त दी थी, लेकिन दरिंदा सिर्फ भारतीय दिफाई अताशी ब्रिगेडियर्स नारायण ने लड़की को सिफारत खाने में ही ज्यादती का निशाना बना डाला था, जिसके बाद भारतीय सिफारत खाने में मुतय्यन दिफाई अताशी को मुल्क बदर कर दिया गया था। ताहम इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जबकि 3 हफ्ते कबल भी 3 भारतीय फौजियों ने अपने ही मुल्क की इज्जत को चलती ट्रेन में तार तार कर दिया था। वाज़ेह रहे कि भारतीय फोर्सेस मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी खवातीन को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना रही हैं। भारतीय फौज अक़वाम मुत्तहिदा अमन मुंशिस में भी जिनसी ज्यादती के वाक़यात में मुलव्विस रही। गैर मुल्की खवातीन सयाह के लिए हिंदुस्तान जहन्नुम बन चुका और मुतादिद गैर मुल्की खवातीन भारतीय शहरियों के हाथों जिनसी ज्यादती का शिकार होती रही, जबकि आलमी सतह पर जिनसी ज्यादती के वाक़यात में हिंदुस्तानी दारुल हुकूमत नई दिल्ली सरे फहरिस्त है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया की हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। मारूफ शेफ, मेज़बान और माहिर उमूर खानादारी जुबैदा तारिक को हमसे बिछड़े 2 बरस बीत गए, लेकिन इनसे ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखने वाले आज भी इन्हें याद करते हैं। जुबैदा आपा के नाम से मशहूर जुबैदा तारिक 4 अप्रैल 1945 को हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई और 1947 में तकसीम हिंद के बाद उनका खानदान पाकिस्तान मुंतकिल हो गया। जुबैदा तारिक की शोहरत की एक वजह उनके वो टोटके भी थे जो वो अपने टीवी प्रोग्राम्स के दौरान नाजरीन को बताया करती थी। जुबैदा तारिक जिस खानदान से ताल्लुक रखती थी, उसका हिस्सा पाकिस्तान की माया नाज मुसन्निफा फातिमा सुरैया बजिया, मुनफरिद लहजे की शायरा ज़हरा निगाह और हर खासो आम में मकबूल कलमकार, शायर, मिज़ाह निगार, मुसव्विर और अदाकार अनवर मकसूद भी है। जुबैदा तारिक 4 जनवरी 2018 को हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से दुनिया फ़ानी से कूच कर गईं। मॉर्निंग शो की मेज़बान सनम जंग ने तलाक से मुतालिक खबरों पर मद्दाहों से अपील की है कि वो इस तरह की अफवाहों को फैलाने से गुरेज किया करें। साल 2020 को जहां फनकारों की शादियों का साल कहा गया, वहीं गुज़िश्ता बरस फनकारों के दरमियान तलाक और अलहदगी की खबरें भी मंजर आम पर आईं। फरहान सईद, उर्वा हुसैन, फिरोज खान और अलीजा फातिमा के दरमियान अलहदगी की खबरों ने मद्दाहों को चौंका दिया। ताहम जहां इन फनकारों की जानिब से अलहदगी की खबरों की तस्दीक नहीं की गई, वहीं अदाकारा मॉडल राबिया चौधरी ने अपने शौहर से तलाक लेने की खबर खुद इंस्टाग्राम पर दी थी। अब अदाकारा मॉर्निंग शो की मेज़बान सनम जंग की तलाक की खबरें भी सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है। सनम जंग ने 2016 में अपने देरीना दोस्त अब्दुल
कस्साम जाफरी से शादी की थी। कस्साम जाफरी पेशे से पायलट हैं और दोनों की एक बेटी अलाया जाफरी है। मॉर्निंग शो की मेजबान और अदाकार सनम झंग ने शौहर से अलहदगी से मुतालिक खबरों पर कहा कि शौहर कस्साम से अलहदगी की खबरें बेबुनियाद हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं। ये अफवाह मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक मद्दाह की जानिब से किए गए एक कमेंट के बाद फैली, जो मज़ाहिका केस है। सनम ने कहा कि उनका इस तरह की मनगढ़ंत बातों पर कुछ भी तबसरा करने का उनका कोई इरादा नहीं था, पर उनके शौहर और खानदान इसके मुतालिक फिक्रमंद थे। अदाकारा सनम झंग ने कहा कि इस तरह की अफवाहें फैलाने से गुरेज किया जाए तो बेहतर है कि वो और उनके शौहर एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं और अगले ही हफ्ते हमारी शादी की 6ठी सालगिरह भी है। हम बहुत खुश हैं और आगे भी हम एक दूसरे के हमरा खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। मेजबान ने कहा, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बगैर तस्दीक के इस तरह की किसी भी अफवाह को फैलाने से गुरेज किया करें, क्योंकि ये किसी के लिए भी संगीन इल्जाम है और हम अहले खाना समेत बहुत परेशान हो गए हैं। मुझसे और मेरे अहले खाना से कुछ हमदर्दी रखें, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं। और अब शामिल करते हैं खेलों के मैदान की उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च टेस्ट के दूसरे रोज 3 विकेटों पर 286 रन स्कोर किए। कीवीज को पाकिस्तान की बरतरी खत्म करने के लिए मजीद 11 रन दरकार हैं। मेजबान टीम के कप्तान केन विलियमसन ने सेंचुरी स्कोर की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 297 रन के जवाब में क्राइस्टचर्च टेस्ट के दूसरे रोज न्यूजीलैंड ने इनिंग्स शुरू की। ओपनर्स ने 52 रन का पुरएतमाद आगाज दिया। टॉम लीथियम 33 रन बनाकर फहीम अशरफ की गेंद पर आउट हुए। टॉप ब्लेंडर को 16 रन पर शाहीन शाह ने पवेलियन रवाना किया। रोज टेलर 12 रन बनाकर मोहम्मद अब्बास का शिकार बने। 71 पर 3 विकेटें गिरने के बाद केन विलियमसन और हेनरी निकोलसन विकेट पर डट गए। विलियमसन ने करियर की 24वीं सेंचुरी बनाई। विलियम्स और निकोलसन ने मजीद कोई विकेट न गिरने दी और दिन के इख्तिताम तक 246 रन बनाए। इनके दरमियान 215 रन की शराकत हो चुकी है। विलियमसन 112 और निकोलसन 89 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने आइंदा 2 बरस को अहम क्यों करार दिया। इंग्लैंड की टीम 16 साल बाद पाकिस्तान आएगी, जिसके लिए बड़ी मेहनत की है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने कहा कि आईसीसी अगले साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी इवेंट्स की मेजबानी के लिए पेशकश कर चुका है। वसीम खान ने कहा कि कोविड की वजह से ये फैसला ताखीर का शिकार हुआ, लेकिन उम्मीद है कि सितंबर या अक्टूबर तक आईसीसी अगले इवेंट्स के मेजबान का ऐलान कर देगा। पीसीबी चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि 2023 से 2027 के ITP साइकिल में जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के साथ ज्यादा सीरीज खेलेंगे। टेस्ट सीरीज में भी कम से कम 3 टेस्ट होंगे। इंडिया के साथ फिलहाल FTP में कोई विंडो नहीं रखी जा रही। वसीम खान ने कहा कि पाकिस्तान ने गैर मुल्की टीमों की आमद के लिए बहुत इंतजार किया है। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मजीद कहा कि अगले 2 साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। वसीम खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की सरगर्मियों में इंग्लैंड का दौरा भी शामिल है। उनका कहना था कि इंग्लैंड की टीम 16 साल बाद पाकिस्तान आएगी, जिसके लिए रवां बरस विंडो निकालने के लिए भी बड़ी मेहनत की है। वाज़ेह रहे, उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें भी पाकिस्तान का दौरा करेंगी। जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। खास तौर पर ज़ियारत समेत शुमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला भी शुरू हो गया है। मौसम का मजीद हाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के बलाई और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। मानसहरा डिवीजन की वादी कागान, वादी सरन और वादी कोंच में वक्फे से बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। पेशावर में हल्की बारिश से ठंड में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में अब तक 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और गिरदोनिवा में आसमान पर बादलों के डेरे हैं। सूरज ना निकलने की वजह से ज्यादा सर्दी महसूस की जा रही है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के ज्यादातर इलाके बदस्तूर खून जमाती सर्दी की लपेट में है। सूबे में सबसे ज्यादा सर्दी ज़ियारत में पड़ रही है, जहां कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कलात पे -6 और कोयटा में -3 सेंटीग्रेड की सर्दी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के चंद एक इजला में बारिश का और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलाइक इलाकों में धुंध पड़ने का सिलसिला जारी है। आज सुबह कौमी शाहरा, उकाड़ा, गैम्बर, कादराबाद और साहिवाल धुंध में लिपटे रहे। मियां चुन्नू, खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मुलूक, लोधरा और भावलपुर के साथ विहाड़ी भी धुंध के बाइस हद निगाह बुरी तरह मुतासिर हुई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।